So, guys, we are going to discuss May-June 2020, variance 22. Answer all the questions in this section in the space provided. The total marks for this section is 45. Choose from the following chlorides to answer the question. So, chlorides to answer the question. Contain a cation with a 2+ charge. With a calcium ion because it has 2+ charge. Reacts with warm aqueous sodium hydroxide. That's an important statement. Warm aqueous sodium hydroxide to form a gas which turns damp red litmus paper blue, meaning ammonia gas release हो रही है. So ammonia gas is always released when any ammonium salt react with any alkali. The right answer is ammonium chloride. Is insoluble in water. Silver chloride is insoluble in water. Has a molecule which has only 18 protons. 18 protons means that you need to find out that's HCl, I believe, because HCl का atomic number, HCl में chlorine is 17, hydrogen is 1, so total you have 18 proton in this molecule, right? So chlorine has an atomic number of 17, which means it has 17 protons. Hydrogen has an atomic number of 1, which means it has 1 proton. So if you add these two protons number, you will get 18. So hydrogen chloride is the right answer. All right. Is a colored solid at room temperature and pressure. If it is a colored solid at room temperature and pressure, meaning it belongs to a transition element, and its answer is iron 3 chloride. Okay. Now the next question. Hydrogen reacts with oxygen as shown in the equation. A sample containing 1 mole of hydrogen gas is completely combusted. This sample releases 286 kilojoules of energy. Calculate the heat energy released when 25 grams of hydrogen is completely combusted. That's an easy thing. सबसे पहले हम moles of hydrogen gas कैलकुलेट कर लेते हैं. 25 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, बिकॉज H2 का मास होता है 2. ये आ जाएगा आपके पास 12.5 मोल्स. आप जानते हैं 1 मोल से मुझे 286 किलोजूल एनर्जी मिली है. तो अगर 12.5 मोल्स मेरे पास हैं तो बताइए एनर्जी कितनी होगी. तो एनर्जी हो जाएगी आपके पास 26 इंटू 12.5. ये जगह 3575 किलोजूल्स. सो हम यहाँ लिख देते हैं इसको. Use idea about bond breaking and bond forming to explain why this reaction is exothermic. So obviously आप बताएंगे bond breaking is endothermic, bond formation is exothermic.
ठीक है. So during the reaction, more energy is released than absorbed, hence reaction is exothermic. The reaction shown also represents the overall process that occurs within a hydrogen oxygen fuel cell. Describe one advantage of using a hydrogen oxygen fuel cell to power a motor vehicle rather than burning gasoline. जाहिर सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती, पोल्यूटेंट्स रिलीज नहीं होते. आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट which is environmentally friendly. ठीक है. Complete the equation for the two electrode reactions that happens in a hydrogen oxygen fuel cell. With a hydrogen gas जो है वो ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. ठीक है. जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर देगा. Next, the table shows some properties of 5 esters. These esters are part of a homologous series. State the relative molecular mass of methyl pentanoate. Methyl pentanoate ये है आपके पास. सही है. How many carbon atoms? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो बेटा 12 into 6 कर लें आप. कार्बन एटम हो गए. We have 2 oxygen. 16 into 2 कर लीजिए ऑक्सीजन. हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए. 3 plus 3 6, 6 to 8, 8 to 10 into 12. हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए. तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 116. Predict the boiling point of methyl pentanoate. तो आप नोट करें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो ऑब्वियसली बेटा वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए. राइट. So you can suggest or you can predict any value. So मैं predict कर लेता हूँ बेटा 120 डिग्री सेल्सियस. आप 117 भी लिख सकते हैं, 121 भी लिख सकते हैं, 111, 112. You can suggest any value बेटा, इससे बड़ी होनी चाहिए. ठीक है. Explain why it is not possible to predict the melting point of methyl pentanoate. Methyl pentanoate का melting point इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई trend exactly follow हो नहीं रहा. So आप लिखिए यहाँ पर there is no specific trend. At 35 degrees Celsius, methyl methanoate is a gas. Explain how the data in the table shows this. तो बहुत सिंपल सी बात है. इसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है. ठीक है. इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है. इसका मतलब ये गैस होगा. Its temperature (35 degrees Celsius) is greater than boiling point. Methyl pentanoate is used to flavor food. Suggest one other use for ester used in perfumes.
सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज होता है, मैंने बताया आपको। Now the next is B part. Methyl propanoate is prepared by the reaction between propanic acid and methanol. The forward reaction is exothermic. Calculate maximum mass of methyl propanoate that can be made from 11 gram of propanic acid and excess methanol. Answer to 3 significant figures. तो मिथनॉल एक्सेस है, तो सबसे पहले प्रोपेनिक एसिड का एमआर ये हमें खुद से निकालना है। प्रोपेनिक एसिड का फॉर्मूला ऊपर गिवन है। You can clearly see that 3 carbon atoms हैं, तो 12 times 3 plus 2 oxygen है, तो 16 times 2। हाइड्रोजन कितने मेरे पास 6। तो यहाँ से इसका MR आ जाएगा बेटा 74। Now from this MR we can find the moles of propanic acid. ये हो जाएगा आपके पास 11.0 डिवाइडेड बाय 74, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 74 0.1486 मोल्स। ठीक है जी, मुझे मास चाहिए। तो मास ऑफ प्रोपेनिक एसिड के लिए 0.1486 मोल्स है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप प्रोपेनिक एसिड के एमआर से, विच इज 74। तो अगर मैं इसको 74 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मेरे पास 11 ग्राम आ जाएगा। 0.1486 इंटू 74 10.99 आ रहा है मेरे पास। इसके बाद the temperature of the reaction mixture is increased. State and explain in terms of particles what happens to the rate of forward reaction. As temperature increase, kinetic energy increases. Collision frequency increases. More molecules with energy. Greater than activation energy. Thus, rate of reaction increases. Rate of forward reaction increases. The temperature of the reaction mixture is increased.
state and explain position of equilibrium. आप जानते हैं ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम फेवर करता है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, राइट? लिखेंगे एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, so if we increase the temperature favors equilibrium towards left hand side, because backward reaction is endothermic. Okay. Part of the reactivity series is shown. Predict the names of the product formed when chromium reacts with dilute hydrochloric acid. Predict the name of the products formed when chromium reacts with dilute hydrochloric acid. जब क्रोमियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है क्रोमियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्रोमियम क्लोराइड and hydrogen gas. Powdered zinc is added to aqueous chromium 3 ions. Construct the ionic equation with the state symbols for this reaction. आप जानते हैं कि zinc is more reactive than chromium 3 ions, तो इसको displace करेगा। थोड़ा समझिएगा बात को, हाँ। Things are not so simple. ये है zinc ions, sorry, ये है zinc। जब डिस्प्लेस करेगा ये क्रोमियम आयंस को तो खुद ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होगा जिंक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में। जो क्रोमियम 3 आयंस हैं वो रिड्यूस होंगे, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करके कन्वर्ट करेंगे क्रोमियम मेटल में, यानी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा। इसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी, इसमें रिडक्शन हो रही होगी। सरप्राइजिंगली मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बैलेंस होने के बाद कैंसिल हो जाएंगे ऑपोजिट साइड पे होने की वजह से, तो फाइनल इक्वेशन में आप लिख कर दे रहा हूं आपको। फाइनल इक्वेशन बनेगी 3 जिंक प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस एरो 3 जिंक आयंस प्लस 2 chromium. I hope it makes sense to you. स्टेट सिंबल्स मांग रहे हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वस होगा, आयन है तो ये भी एक्वस होगा, ये मेटल है तो सॉलिड होगा। फिर वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो आप बताइए एल्यूमिनियम क्यों नहीं रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? बिकॉज एल्यूमिनियम की एक थिक ऑक्साइड लेयर होती है, वो लेयर वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देगी। Because of the thick oxide layer, which is non-porous, so water cannot interact with aluminum. Next is
hydrogen peroxide, an oxidizing agent, is added to aqueous potassium iodide in the test tube. Describe the color change seen in the test tube. Hydrogen peroxide is an oxidizing agent. Potassium iodide is colorless. But issue is कि जब hydrogen peroxide iodide ions के साथ reaction करेगा, वो उसको oxidize करके iodine में convert करेगा, और iodine का क्योंकि solution होगा, इसलिए you will get brown solution. ठीक है? So initially ये भी colorless होगा, ये भी colorless होगा, जब आपस में reaction करेंगे तो brown solution में convert होगा. तो आप ये भी लिख सकते हैं colorless to brown. Chromium is extracted by the reaction of aluminum with chromium 3 oxide. Write the equation for this reaction. Okay. ये हो जाएगा Cr2O3 because aluminum की reactivity ज़्यादा होती है, इसलिए aluminum chromium को displace करेगा in the form of chromium और खुद convert हो जाएगा aluminum oxide में. सही है? So हम यहाँ पर equation को balance कर देते हैं. Al2O3 to chromium. चलो, सही है? Suggest a compound that can be reduced chromium 3 oxide to chromium metal. Obviously, अगर आप reduce कर रहे हैं तो you need a reducing agent, and for that you can use carbon monoxide. मैं हाइड्रोजन गैस नहीं लिख सकता यहाँ पर because हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उससे मुझसे कंपाउंड पूछा. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. I cannot write hydrogen gas because hydrogen gas is a molecule, not a compound. State one advantage of recycling metals. जब भी recycling of metal होता है ना, तो उससे एनर्जी सेव होती है. इसके अलावा environmental जो डैमेज है वो भी नहीं होता, environment भी कंट्रोल में रहता है. Question number 8. Sulfuric acid reacts with sodium hydroxide as shown. A sample of 25 cm cube of 0.05 mole per dm cube H2SO4 is placed in the beaker. NaOH is added slowly from the burette. H2SO4 in the beaker. The pH probe is used to measure the pH of the solution in the beaker until a total 40 cm cube of NaOH is added. The graph shows the pH of the solution in the beaker. Okay. Explain in terms of ion present why the pH of the solution in the beaker changes from 1 to 13. तो आप जानते हैं बीकर के अंदर H2SO4 होगा, H2SO4 होगा तो जाहिर सी बात है उसमें हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज्यादा होगी. जब हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो pH लो होती है. तो मेरा पहला पॉइंट आ गया कि बीकर हैज H2SO4 due to complete dissociation or complete ionization it has more hydrogen ion, thus it has low pH value. ठीक है. अब आपने क्या किया, ब्यूरेट से NaOH ऐड करना शुरू किया H2SO4 में. बिकॉज ऑफ दैट एसिड बेस रिएक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का रिएक्शन होगा. जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कम होगी और पीएच राइज होना शुरू होगी. On addition of alkali, acid base reaction takes place. This decreases the hydrogen ion
and increases the pH. ठीक है, और जब आप एक एक्स्ट्रा ड्रॉप ऐड करते हैं टू गेट द एंड पॉइंट, तो पीएच राइज होकर 13 तक चली जाती है. When you add one more drop of NaOH to get the end point, due to high concentration of hydroxide ion, pH rises to 15. Oh, sorry, pH rises to 13. ठीक है. Use the graph. Use the graph to state the volume of NaOH that just neutralized all of the H2SO4. So beta, this is the vertical section of the graph. If you remember, मैंने कुछ ऐसे पहले ATP भी करवाया था आपको, और vertical section of the graph के ऊपर ही आपने determine करना होता है. ये आ गया आपका volume of end point, which is 20 cm cube, right? (20.0 cm cube). वो कह रहे हैं use your answer to B to calculate the concentration in mole per dm cube of NaOH. बेटा सबसे पहला काम, मुझे H2SO4 की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, तो 1000 cm क्यूब में H2SO4 के मोल्स कितने हैं? 0.05. आपने H2SO4 कितना यूज किया था? 25 cm क्यूब. तो उसमें मोल्स कितने हो जाएंगे H2SO4 के? 0.00125 मोल्स. आप ये भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, NaOH और H2SO4 के दरमियान जब भी रिएक्शन होता है, हमेशा 2:1 का रेशियो होता है. तो अगर आपने 0.00125 मोल्स कैलकुलेट किए हैं, तो मोल्स ऑफ NaOH आपके पास कितने हो जाएंगे? यहां से 0.00250 मोल्स. ठीक है. आपको ये जो मोल्स आपने निकाले, ये 20 cm क्यूब में निकाले, 1000 cm क्यूब में कैलकुलेट कर लीजिए इन ऑर्डर टू गेट द कंसंट्रेशन. तो 20 cm क्यूब contain 0.00250 moles of NaOH. अगर मुझे इन मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, ऑब्वियसली आई विल यूज 1000 cm क्यूब का कंपैरिजन. तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास? 0.125 मोल पर dm. तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.125 मोल पर dm क्यूब. ये जगह 0.05 into 25 divided by 1000, 0.25 multiplied by 2 into 1000. ठीक है. इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6. द स्ट्रक्चर ऑफ टू अल्कोहल्स आर शोन. व्हाट इज द नेम ऑफ अल्कोहल बी? तो देखें, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. फोर्थ कार्बन का अल्कोहल इज ब्यूटेनॉल. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन अदर अल्कोहल व्हिच इज एन आइसोमर ऑफ बी. तो अगर ये बाय द वे इसका नाम मैंने शायद आपको दिया हो, ब्यूटेन वनोल, राइट? तो हम ब्यूटेन टूओल भी तो बना सकते हैं, यानी OH को उठाकर मैं इस कार्बन पे ले जाऊं और ये वाला H जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट कर दें आप. एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इजीएस्ट वन. वरना चेन आइसोमर भी हो सकता है इसमें.
अल्काइल ब्रांचेस के थ्रू भी बन सकता है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। देखो मैंने OH इस कार्बन पे शिफ्ट किया और इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो आखिरी वाले कार्बन एटम के ऊपर ले गया, आई मीन टू से ऑन दिस कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन लगाया है मैंने। इसको कहते हैं ब्यूटेन टूल। इसका एक और भी आइसोमर बन सकता है। फॉर इंस्टेंस मैं इस CH3 को उठाऊं, इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर दूं और इसका जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे लिया, तो भी आइसोमर बन जाएगा। कैसे? ये CH3 है, ये मैंने CH3 इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर दिया था, ये H एज इट इज, ये CH2 एज इट इज और ये OH एज इट इज। तो इन दोनों में से कोई एक बना दीजिए। इसके थ्रू, क्योंकि ये ब्यूटेन वन ओल है, तो इसके थ्रू ब्यूटेन टू ओल इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। ठीक है, और भी बन सकते हैं, इससे भी आइसोमर बन सकता है, लेकिन क्योंकि 1 मार्क का है इसलिए बेटा आप इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। इथेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल सच एज द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन। बेटा इथेनॉल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो इथेनोइक एसिड बनता है, यूनिट KMnO4 in the presence of hydrogen ion, acidic medium. Ethanol is a simple molecular compound. Explain why liquid ethanol does not conduct electricity because of the absence of free mobile ions. ठीक है, ethanol can be dehydrated from ethene. Describe using a dot and cross diagram the bonding in a molecule of ethene. Only include the outer shell electrons. तो सबसे पहले तो आपको इथीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C2H4। फिर आपको याद होना चाहिए कि इथीन में एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन थे, बीच में डबल बॉन्ड था और यहाँ पर भी 2 थे। That's what we have done in chemical bonding, if you remember. सही है, तो एक कार्बन एटम ये आ गया मेरे पास। इस कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन एटम का भी आप इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, 1 2 3 4। जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आपकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हो गई, विच इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। आप चाहें तो सर्किल करके भी बना सकते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ये ज्यादा आसान है। इट इज वेरी इजी, क्योंकि आपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन शो करने हैं सिर्फ। हम वो वाली डायग्राम भी बना देते हैं आपको जो आपने हमसे क्लास में पढ़ी है। ये दोनों कार्बन एटम्स हो गए, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन एंड दिस वन इज फोर्थ हाइड्रोजन। सही है, अब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको देख लीजिए, 1 2 3 4। ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बाद 1 2, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये कार्बन और ये सारे के सारे हाइड्रोजन्स। तो मुझे ये ज्यादा इजी लगता है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट ये दोनों ठीक है, दोनों में से जो भी चाहे बना सकते हैं। Question number 7. This question is about some of the oxides of element in period 3. State the electronic configuration of the negative ion in sodium oxide. Sodium oxide में जो negative ion है वो oxide ion है। Oxide has a charge of 2 minus. Oxygen has an atomic number of 8, which means इस particle में total 10 electrons होंगे। तो 10 electrons की electronic configuration वो मांग रहा है मुझसे। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन इनसॉल्युबल बेस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल। ओके, प्रिपेयर प्योर मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल।
और मैग्नीशियम ऑक्साइड के थ्रू। Describe essential practical details for the preparation of pure magnesium sulfate crystal from magnesium oxide. So बेटा हम सिंपल सी बात ये करेंगे कि take sulfuric acid in a beaker, put magnesium oxide in it until no more dissolve. ठीक है, filter the mixture by using filter paper. अब जो रेजिड्यू होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और जो फिल्ट्रेट है वो मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन होगा। Filtrate needs to concentrate and then left to crystallize thus pure magnesium sulfate crystals are obtained। ठीक है, oxide of phosphorus contain 43.7% by mass of phosphorus। Show that empirical formula of the oxide is P2O5। okay, तो भाई मेरे पास phosphorus है 43.7%, जबकि ऑक्सीजन 100 में से 43 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे 43.7, तो आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा which is 56.3। तो 56.3 को डिवाइड कर दीजिए 16 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 31 से, तो आपके पास ये आ जाएगा 1.41 और ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3.52। 1.41 लीस्ट वैल्यू है, इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा आपके पास 2.5। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास फॉस्फोरस 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 5 हो जाएगा और ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। Sample of this oxide has a mass of 2.56 gram. Sample contain 0.00901 mole of the oxide. Calculate the relative molecular mass and hence the molecular formula of the oxide of phosphorus। आपको मास दे दिया है, आपको मोल्स दे दिए हैं, तो आप एमआर कैलकुलेट कर लेंगे। ये है 2.56 डिवाइडेड बाय 0.00901, इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 2.56 डिवाइडेड बाय 0.00904। just hold on a second beta। 2.56 divided by 0.00901, ये आ रहा है मेरे पास 284.12। ठीक है जी, अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एमआर आ गया। मैं क्या करूंगा, मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला हुआ है P2O5 टेकन N इक्वल्स टू 284.12। सही है, अब
P2O5 का मास 31 into 2 plus 16 into 5 taken n equals to 284.12. बेटा 31 into 2 कितना होता है आपके पास? 31 into 2 plus 16 into 5, it's going to be 142 n equals to 284.12. तो यहाँ से 284.12 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, एन की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 284.12 है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा P4O10। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अगर मैं यहाँ पर P2O5 ले रहा हूँ और मैं इसको टेकन 2 कर रहा हूँ तो ये बनेगा P4O10, ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। स्टेट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर जॉइंट होता है एंड बॉन्डिंग कोवलेंट होती है। ठीक है। Question number 8. Copper is a transition element. State two properties that are typical of a compound of a transition element. बेटा transition elements colored compounds बनाते हैं, variable oxidation state होती है, इसके अलावा catalyst के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो आप लिखिए form colored compounds और लिखिए acts as a catalyst, use as a catalyst. Aqueous copper to sulfate reacts with aqueous potassium iodide. The ionic equation for this reaction is shown below. Explain how this equation shows that reactions involve oxidation. बेटा आप जानते हैं कि आयोडाइड आयंस जो है वो कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, इसका मतलब इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन iodide ions loses electrons. Anhydrous copper to sulfate decomposes when heated strongly. 6.40 gram of copper sulfate is heated until all the sample has thermally decomposed. Calculate the volume of sulfur trioxide formed in dm cube measured at room temperature and pressure. ठीक है। तो बेटा मैं सबसे पहले तो MR और CSO4 कैलकुलेट करूंगा। ये हो जाएगा 64 प्लस 32 प्लस 16 टाइम्स 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 160। ठीक है। फिर मोल्स की बात होगी कि मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट निकालें। तो बेटा 6.40 को आप डिवाइड कर दीजिए 160 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.4 divided by 160, it's going to be 0.04 moles. Now ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो रेशियो सेम है, तो मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड सेम हो जाएगा, that is 0.04 moles. हम जानते हैं at room temperature and pressure 1 mole of any gas occupy 24 dm cube at RTP. तो अगर ये 0.04 मोल्स है मेरे पास, तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.96 dm क्यूब, तो यहाँ लिख दीजिए 0.96 dm क्यूब।
Then iron reacts with aqueous copper 2 sulfate to make aqueous iron 2 sulfate and copper. Construct the ionic equation for this reaction. Okay, तो सबसे पहले तो इसकी जजमेंट देखिए किस तरह से होगी. आयरन है मेरे पास और वो रिएक्शन कर रहा है CuSO4 से, तो ये कन्वर्ट होगा FeSO4 में एंड कॉपर भी. और आप जानते हैं कि सल्फेट आयंस स्पेक्टेटर आयंस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो ये होगी आयरन प्लस Cu2 प्लस एरो Fe2 प्लस Cu. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं सजेस्ट वन ऑब्जर्वेशन दैट वुड बी सीन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. बेटा ब्लू सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, पिंक ब्राउन सॉलिड अपीयर होगा, ग्रीन सॉल्यूशन अपीयर होगा. मैंने 3 बताई हैं. आप तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं. ज्यादा बेहतर है कि पिंक ब्राउन सॉलिड अपीयर्स. ठीक है. Describe a chemical test that can be used to distinguish between aqueous solution of iron 2 sulfate and copper 2 sulfate. मैं यूज कर लेता हूं aqueous ammonia. ठीक है. आयरन 2 सल्फेट के साथ आएंगे ग्रीन प्रेसिपिटेट्स. ठीक है. remains insoluble in excess aqueous ammonia. Reaction with copper 2 sulfate, blue precipitates dissolve to give blue solution in excess aqueous ammonia. ठीक है. Question number 9. Sulfur dioxide is a colorless gas which can be found in air. State one environmental problem caused by the presence of sulfur dioxide in air. तो बेटा आपको पता है एसिड रेन कॉज करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन. When heated in air, iron pyrite reacts with oxygen. Sulfur dioxide and iron trioxide are the products. See guys, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं Fe2O3 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. Construct the equation for this reaction. तो iron pyrite is Fe2S. ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं इसको Fe2O3 में और सल्फर डाइऑक्साइड में. So how many oxygens now we have? 2 iron, 3 oxygen, 2 plus 5 oxygen. Okay. Oh, wait. FeS2 है, S2 है, S2 4 करो तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 4 2 से 8 करो, यहाँ 8 हो जाएंगे. ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 times 3 6 plus 16 6 plus 16 22. तो यहाँ पर 11 कर दीजिए. Give one use of sulfur dioxide.
बेटा फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प के लिए भी यूज होता है, ड्यूरिंग पेपर मेकिंग। ये दो लिखवाएं, इन दोनों में से कोई एक लिख दीजिए आप। Liquid sulfur dioxide is stored in cylinders. When the cylinder is opened, liquid quickly changes into gas. Use kinetic particle theory to describe the changes in movement and arrangement of particle when liquid sulfur dioxide becomes a gas. Liquid sulfur dioxide में irregular arrangement with random motion gaseous sulfur dioxide में highly irregular arrangement क्योंकि क्विकली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है particles move faster particles are very far away from each other. Sulfur dioxide has a low melting point. Suggest in terms of structure and bonding why sulfur dioxide has a low melting point. तो आप बताइए सल्फर डाइऑक्साइड में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, इसलिए उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वी नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सिंस इट हैज 2 मार्क्स, आई थिंक बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर देते हैं। तो बता दीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड एग्जिबिट कोवलेंट बॉन्डिंग and has a molecular structure so due to weak van der Waals forces less energy is needed to overcome such forces. ठीक है, describe the chemical test for sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑब्वियसली उसको टेस्ट करने के लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो मैं लिखूंगा एसिडिफाइड KMnO4। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस। Okay, now the next question is fractional distillation and cracking are important processes in the conversion of petroleum into useful hydrocarbons. Fractional distillation separates petroleum into fractions such as bitumen and naphtha. Which physical property allow the petroleum to be separated into fractions? Boiling point. आप जानते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में तमाम फ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट होते हैं। डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मैंने तकरीबन 3 टाइम्स पहले भी लिखवा चुका हूं, मैं दोबारा से कर देता हूं।
heat the crude oil, ठीक है, different fractions have different boiling points. Have different boiling points. So fraction with low boiling point will collect from the top, while fraction with high boiling point will collect from the bottom. Give one large scale use of bitumen. आप जानते हैं रोड सरफेसिंग के लिए यूज होता है, road making. Naphtha fraction is used as a chemical feedstock. One of the hydrocarbon is naphtha that has a formula C10H22. Use the general formula for an alkane to show that this. Okay, it's quite easy. Alkane has a general formula of CnH2n plus 2. We have how many carbon atoms? 10. So 10 into 2 plus 2. So it's going to be C10H22. सही है? उसके बाद part C. In an experiment, C10H22 is cracked to form products A, B, and C. Product A gives explosive pop with ignite with a burning splinter, which means hydrogen gas की बात हो रही है यहाँ. ठीक है. Product B has a relative molecular mass of 98 and decolorizes aqueous bromine. Suggests the molecular formula of B. Beta decolorizes aqueous bromine indicates that this product B is an alkene. An alkene has a mass of 98. So जाहिर सी बात है alkene 98 okay ये है C10H22 actually okay, C10H22 सबसे पहले आपके पास है, इसका MR निकाले थे 144. ठीक है, इसमें से हमने हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी तो ये हो जाएगा 142. अब 98 है, 98 का फ्रैक्शन निकालेंगे. 142 है तो 140 हो जाएगा. 140 में से 98 सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, जस्ट होल्ड इन अ सेकेंड. 140 minus 98 is going to be 42. ओके, ये आपका बी हो जाएगा. ओके, ये हो जाएगा CnH2n because it is an alkene. So what we can do is कि हम 4 times करके देखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास C4H8. C4H8 का मास 98 नहीं होता, इसका मतलब ये 4 कार्बन एटम भी नहीं होगा. C6H2 times 6 देखिए
तो ये हो जाएगा C6H12, सही है। C6H12 जो है उसका मास 90 आता है, 12 टाइम्स 6 प्लस 12 84 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर ट्रायल एंड एरर कहते हैं बेटा इसको, C7H2 इंटू 7, ये फॉर्मूला बनेगा C7H14। तो C7H14 देखते हैं, 12 टाइम्स 7 प्लस 14, इट्स गोइंग टू बी 98। गाइस ये ट्रायल एंड एरर की बेस पे होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है C7H14, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली मैंने ट्रायल एंड एरर यूज किया है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अप्लाई किया है। Because it decolorizes bromine, meaning it has double bond between carbon atom. ठीक है। पार्ट थर्ड, प्रोडक्ट सी कैन बी पॉलीमराइज्ड टू गिव अ पॉलीमर शोन। बेटा ये पॉलीप्रोपीन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट सी। तो प्रोडक्ट सी पॉलीप्रोपीन बन रहा है तो प्रोपीन से बना होगा, और प्रोपीन ये होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। वी आर डन विद दिस पेपर। हम